ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ B.E.D ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୁରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ତାର ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ତୁମର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ 10 ଏପ୍ରିଲ 2025କୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏରେ। ତାପରେ ତୁମର ରହିଛି 11 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ରେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ ସେମାନେ କରିପାରିବେ 11 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ। ତାପରେ ରହିଛି ତୁମର 23 ମେ 2025ରେ ତୁମର ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଏଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବୋଲି କହୁଛ। ତାପରେ ତୁମର 1 ଜୁନ୍ 2025ରେ ତୁମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ B.E.Dର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ B.E.D ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲଟେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିଛି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ରହିଛି, ୟୁଜର ମାନୁଆଲ୍ ରହିଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ପାଇଗଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇପଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିଲାରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ତାର ଟୋଟାଲି ପୁରା ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତାପରେ ତୁମର ଏଇଭଳି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଓପନ୍ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏଇଠି ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଥିବା ଦରକାର ନା 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ତୁମର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଯଦି 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଏଠି ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନେଉଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମର ନାଁ ଦେବ, ନାଁ ତଳେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତଳେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ତଳେ ତୁମର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଭରିଦେବ। ତାପରେ ଜେନେରେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଏଟା ଭରି ନେଉଛି। ଜେନେରେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମର ଏମିତି ଏଣ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ମାଗିବ। ତା ତଳକୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ରହିଛି। ତୁମର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ କିମ୍ବା ତୁମର ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଭରିଥିବ ସେଇଠାରେ ତୁମର OTP ଯାଇଥିବ। ସେଇ OTPଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ରେ ଭରିଦେବ। ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତୁମେ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନେବ। ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ପ୍ରଥମ ଲେଟରଟା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ରହିବ, ବାକି ତାପରେ ସବୁ ସ୍ମଲ୍ରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କୌଣସି @ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେଇକି କୌଣସି ନମ୍ବର 1 2 3 ହେଉ କିମ୍ବା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉ କିଛି ବି ତୁମର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା 8 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେବାର ଦରକାର, ମାନେ 8ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହା ଏଠି ଲେଖିବେ ତା ତଳେ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଲେଖିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ସବମିଟ୍ ନେବ। ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଆଉ ମୋ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଏମିତି ଲେଖା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ତୁମର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତୁମର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଚା ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି ତୁମର ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଶୋ କରୁଛି ସେଇଟା କ୍ୟାପ୍ଚା କୁହନ୍ତି। ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଇଠି ଏଣ୍ଟର କରିବ। ଏଣ୍ଟର କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଓପନ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଜିଲକର୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏଠି ୟେସ୍ କରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସେଠି ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏକା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଜିଲକର୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଠି ନ କରିବେ, ନ କରିକି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଜିଲକର୍ରେ ଏଠି ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ତଳେ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ମୁଁ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ଓକେ କରିକି ମୋର ଫର୍ମକୁ ଓପନ୍ କରିନେବି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖା ଆସିଛି ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଗନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭୋଚର୍ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ସ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍। ତୁମେ ଯେଉଁ କୋର୍ସଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ି ସାରିଛ। ତ ଯଦି ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ସେଠି ୟେସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ ହୁଇଚ୍ କୋର୍ସ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ତୁମେ କେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ସେଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ମୁଁ ଏଠି B.E.D ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି B.E.D ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବି।
बीईडी सिलेक्ट कला परे मोर एभलिया आसीजिवो देखंतु सेठी ऊपर जो लेखा आसुची कोर्स एठी बीईडी लेखा आसीबो एप्लिकेशन टाइप फ्रेश लेखा आसुची तापर एठी आसीबो ऑप्शन आपनकर 10th बोर्ड सिलेक्ट करिवे को बोर्ड रे आपन माने 10th करचंती जेहेतु हमर बीएससी ओडिसा तो मु एठी बीएससी ओडिसा सिलेक्ट करनेबी तापर 10th ईयर ऑफ पासिंग कहूची तो आपन माने को ईयर पास करचंती सेठी आपन सिलेक्ट करनेबे तापर एठी देइछि 10th एग्जाम टाइप एठी एनुअल और सप्लीमेंटरी रहिछि एठी एनुअल सिलेक्ट कर देबे तापर 10th रोल नंबर दे देबे तापर ग्रेजुएशन एग्जाम जो रहिछि एठी पास जदि ग्रेजुएशन करचंती तो एपीआर लिखिबे जदि पास होइछंती पास लिख देबे एठी पास सिलेक्ट कला परे एठी सब किछि ऑटोमेटिक भरी जीवो जोटा कि एप्लिकेंट नेम मदर्स नेम फादर्स नेम जेंडर कतरो आरंभ करिकि डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी सब किछि भरी जीवो तापर मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक आसी जाउची एठी आधार नंबर ब्लैंक थिला एठी मो आधार नंबर मोर भरी दोची आपण माने भी एठी आधार नंबर दे देबे तापर तळे एठी बॉक्स रे टिक कर नेबे तापर एठी व्हाट्सएप नंबर जगह रे जदि व्हाट्सएप नंबर मोबाइल नंबर सेम थिबो एठी ओके कर नेबे टिक मार नेबे तापर मैरिटल स्टेटस रहउची आपनकर हेटा अनमैरिड जदि थिबे आपण अनमैरिड मारिबे जदि मैरिड कर साचन त एठी मैरिड सिलेक्ट करिवे तापर एठी आसुची आपण एग्जामिनेशन सेंटर जोटा कि मु बालेश्वर सिलेक्ट करची आपण माने जो डिस्ट्रिक्ट रो बिलोंग करचंती त आपण मानकर जेठी पाख हबो सेही डिस्ट्रिक्ट आपण सिलेक्ट कर नेबे तापर तले ऑप्शन आसुची जदि आपण आ भितर कोनसी ऑर्फन किंबा ग्रीन पैसेज स्कीम किंबा को एथरे कोनसी जो बिलोंग्स करचोती तो आप सिलेक्ट करके आपण सेठी भरि देबे तापर तळे रहिछि सोशल कैटेगरी एठी एससी एसटी ओबीसी जहाँ आपण बिलोंग्स करचोंती एठी आपण सिलेक्ट करनेबे तापर तळे रहिछि सर्टिफिकेट नंबर भी आपण माने सर्टिफिकेट देखिकि एठी भरि नेबे एग्जांपल रे साइट रे दे दिछि सर्टिफिकेट नंबर के भलिया सेठी देखिकि आपण माने भरि नियंतु ता तळे आसीछि इश्यू अथॉरिटी माने सर्टिफिकेट आपण माने केउठे इश्यू करचोंती तहसीलदार पाखरु कि कोउठे आरआई पाखरु कि कोउठे कोन इश्यू करचोंती सेठी सिलेक्ट करनेबे कला परे इश्यू डेट भी आपण माने एठी क्लिक करके सिलेक्ट करनेबे तापर अच्छी स्पेशल यूजर कैटेगरी एठी जदि पीडब्ल्यूडी हेतिबे किंबा एक्स सर्विसमैन हेतिबे सिलेक्ट करनेबे तापर डू यू वांट टू हॉस्टल फैसिलिटी जदि एठी आपण हॉस्टल नवा पाई चाहउछंती यस करिवे नले न करके छाड़ देबे तापर आपण मानकर जो एड्रेस अछि एठी एड्रेस भरि देबे जदि रेसिडेंट एड्रेसटा परमानेंट एड्रेस सहित समान हेतिबो ताले एठी बॉक्स रे टिक कर देबे आ गोटे जिनस देख पिला माने एठी रेसिडेंट सर्टिफिकेट रो बारकोड नंबर मागिछि तो एठी स्टार मार्क कोनसी नाही तो मु बिना रेसिडेंट सर्टिफिकेट देकी भी फॉर्म को भरि नेबी तो एठी तळे गोटे ऑप्शन रहिछि जदि आपण माने 10 क्लास रे ओडिया मीडियम रे पास करचंती ताले एठी यस क्लिक कर देबे ता तळे रहिछि आपण मानकर बापांकर ऑक्युपेशन रहिछि मांकर ऑक्युपेशन रहिछि बापा कोन करंती मां कोन करंती एठी सिलेक्ट कर नेबे बापांकर इनकम केते अछि सिलेक्ट कर नेबे तापर एठी इनकम सर्टिफिकेट बारकोड नंबर मागिछि एठी भी कोनसी स्टार मार्क नाही तो मोठी बिना इनकम सर्टिफिकेट रो नंबर देकी भी फॉर्म को भरि दोछि तापर आ गोटे ऑप्शन रोचे स्पेशल कैटेगरी जदि कोनसी जो जीएसएसवाई स्कॉलरशिप रहिछि सेथरे जदि आपण अंतर्भुक्त अछंती आ भितर कोनसीटा भी ता सिलेक्ट करि पारिबे नहले नॉन ऑफ दिस करके छाड़ देबे तापर भी देछि आपनकर सीएम किसान स्कीम रहिछि एठी जदि आपण सेठी सीएम किसान स्कीम आपनकर फैमिली बापा जदि के पाउचंती तो हेठी यस करिवे न कर देबे तापर जोटा रहिछि निर्माण श्रमिक कल्याण योजना जोटा कि लेबर कार्ड रे उपभोक्ता स्कॉलरशिप लेबर कार्ड जदि स्कॉलरशिप मिलुछि आपण मानको तो हेठी यस करिवे नले न करके छाड़ देबे तापर तले एठी स्ट्रीम सिलेक्ट करनेबे आर्ट्स कॉमर्स साइंस किबा बीटेक जहाँ कोर्स रहउछि एठी सिलेक्ट करनेबे तापर तुमर एठी ग्रेजुएशन रो डिटेल्स भरि देबो एग्जाम केबे पास करथिले केबे कोन कॉलेज रे पास करथिले केबे पास करथिले रोल नंबर सहित एठी सीजीपीए किबा मार्क रे एंट्री करके एठी भरि नेबे तापर तुम तळे रहछि एठी बैंक डिटेल्स एठी अकाउंट नंबर दे देबे अकाउंट नंबर को कंफर्म कर देबे तापर अकाउंट होल्डर नेम जहाँ ना अकाउंट रही तुम ना तुम ना को भरी देवे आईएफसी कोड दे देवे ऑटोमेटिक ब्रांच नेम आ बैंक नेम सब ऑटोमेटिक आसीज तापर ये तले ये बॉक्स अच्छी गोटे बॉक्स टिक मार्क करके ये प्रोसीड उपर क्लिक करदे तापर तुम ये ओके ऑप्शन आसो ये ओके उपर क्लिक करदे कर सारा पर तुम ये सबकि डिटेल्स पूरा आसीज जहाँ जहाँ तुम फॉर्म में भरी थो ये आपण मैंने आउ थे सब चेक करदे तुम रही तुम ना कतरू आरंभ करके डिटेल्स सब बैंक डिटेल्स पाखर आरंभ करके सबकि डिटेल्स भल भाव में चेक करदे चेक कर सारा पर ये बॉक्स रे टिक करेंगे टिक कर सारा तले अच्छी कन्फर्म आउ अच्छी बैक टू मॉडिफाई जदि कौन भूल भाल कर मन पड़ू कि लगुच कौटी भूल रही है तबे बैक टू मॉडिफाई करके सीटी आउ थे जाकि एडिट करेंगे जदि सब किसी ठीक ठाक रही तबे कन्फर्म मारिकी आगु को बढ़ी जाए कन्फर्म मारला तुम ये ओपन हो कौन मागुच ना तुम
इनकम सर्टिफिकेट आउ रहा तुम रेसिडेंट सर्टिफिकेट आउ रहा कास्ट सर्टिफिकेट 3टा सर्टिफिकेट तुम अपलोड मागुची से पुणी पीडीएफ फॉर्मेट रे आ पीडीएफटा 100 केबी भितर होइथिबा दरकार। मुझे पीडीएफ को एंटर कर दूची तापर सेव उपरे क्लिक कर दूची। सेव उपरे क्लिक कलापर तुम ये डिटेल्स सब आसीज आसीगला तले ये अपलोड फोटो मांगो ये 80 केबी भितर आपणकर फोटोटा होइथिबा दरकार से फोटो को मुझे अपलोड कर दूची। ता साइट्रे सिग्नेचर मागिची सिग्नेचर मुझे अपलोड कर दूची। बर्तमान मु फोटो आउ सिग्नेचर अपलोड कलापर सेव उपरे क्लिक करी। सेव उपरे क्लिक कलापर ये आसो आर यू श्योर वांट टू सेव ये ओके उपरे क्लिक करदे। ओके उपरे क्लिक कलापर तुम ये आसीज जोटा कि तुम पेमेंट आपण मैंने ये 2 वे पेमेंट करेंगे। गोटे रही एचडीएफसी बैंक आउ गोटे अच्छी एसबीआई ई पे। मुझे एसबीआई ई पे रे पेमेंट करुच्ची। एसबीआई ई पे उपरे क्लिक करके प्रोसीड उपरे क्लिक करदेली। तापर तुम ये डिटेल्स शो कर केते टंका कौन अच्छी अमाउंट पेमेंट करने पड़ो ये साइड्रे शो कर मतलब ये 500 टंका पेमेंट करने कहूँ। मुझे क्लिक टू पे उपरे क्लिक करके पेमेंट करनेबी। क्लिक टू पे उपरे क्लिक कलापर आपर ये आसीज। तो ये आपड़ ये क्रेडिट कार्ड किंबा डेबिट कार्ड किंबा आपण मैंने यूपीआई फोन पे गूगल पे पेटीएम कौन माध्यम भी आपण मैंने पेमेंट करेंगे। जदि आप क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड यूज कर कार्ड नंबर भरिकी ये आपंकर कार्ड डिटेल्स भरिकी आप पेमेंट करेंगे। जदि आप यूपीआई यूज कर यूपीआई उपर क्लिक करके यूपीआई आईडी देकी कि गोटे बारकोड आसीज बारकोड उपर स्कान करके आपण मैंने पेमेंट करेंगे। पेमेंट कर सारापर से आपर पेमेंट रिसीव आसीज। तापर आपणकर जो पीडीएफ प्रिंट पाई टोटाली जो डिटेल्स भरी थे से टोटाल फॉर्म एप्लिकेशन फॉर्मटा पूरा से प्रिंट आसो आपण मैंने से प्रिंट करने। तो ये प्रोसेस थिला मुझे चालान काटी नहीं से पिलार काटला देखी दी था आपण मैंने ये पेमेंट करने कलापर आप प्रिंट बाहर करने। तो ये प्रोसेस थिला यार बीईडी फॉर्म फिलअप आपण मैंने धीरे धीरे देखिए आराम से आप फॉर्म फिलअप कर निज निज मोबाइल रे आराम से करने। क्रोम ब्राउजर को जाकि डेस्कटॉप मोड करके आपण मैंने पूरा ये खोल आपण मैंने ये टोटाल डिटेल्स भरवे। आउ गोटे कथा डिटेल्स भरवा टाइम टे ध्यान से भरवे जमी कौन भूल न हो। भूल हेले 11 तारिख तार पुणी आउ थे फॉर्म एप्लाय खोल तो से करेक्शन करेंगे। किंतु आपण मैंने चेष्टा करूँ जमी से भूल न हो कहीं बहुत पिला अच्छा नेम रे मिस्टेक करती डेट ऑफ बर्थ रे मिस्टेक करती आ फोटो गुड़ा चेष्टा करेंगे सबकि क्लीयर देवाई जमी आपंकर रिजेक्शन न आसू। तो यहाँ थिला आपण गोटे एप्लाय फॉर्म डिटेल्स टे। तो आपर यही चैनल रे विभिन्न प्रकार जॉब डिटेल्स पाखु आरंभ करके बहुत प्रकार फॉर्म एप्लाय किसी सबकि अपडेट ये आसो। तो आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखु। आम टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जातु। सर्वप्रथम वीडियो आपण मैंने टेलीग्राम चैनल माध्यम पाइपर सबकि अपडेट पाखु आरंभ करके विभिन्न प्रकार पीडीएफ टेलीग्राम चैनल रे शेयर होची आपण मैंने सेठी पाइपर। तो देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे। रोची नमस्कार, जय जगन्नाथ।